Hello, am I audible? Hello. So we will do the properties of fuzzy sets today. And then we will move on further. Chandan, Shubham, Saurabh, Malik, Suraj.
So these are the properties of fuzzy sets. So if A is any fuzzy set, then if A and B are two fuzzy sets, then A union B is equal to B union A. So this is the commutativity property. Then we have associativity. If A, B, and C are three fuzzy sets, then A union B union C is equal to A union B, and then the union with C. These are other properties: distributivity, idempotency, identity, involution. Just go through these properties. So all these properties which are true for crisp sets are also true for fuzzy sets. Okay, there are only two properties which are not applicable to fuzzy sets. Which are those two properties? One is the law of excluded middle and another is the law of contradiction. Now in case of crisp sets, we know that so suppose I take, let us take an example of a crisp set. Okay, suppose A is 1, 2 and B is equal to 3, 4, 5. And the universe is suppose 1, 2, 3, 4, 5. Okay, this is the universe of discourse. So A union, now if I find out A intersection, it will be equal to 3, 4, 5. And if I take union of A and A bar, then I will get this universe. A union A bar, this is equal to universe in case of crisp sets. Okay. Similarly, if I take the intersection A complement, this is equal to 5. Okay, so these two properties, they are true in case of crisp sets, but they are not true in case of fuzzy sets. Okay, the law of excluded middle and the law of contradiction. And why is this so? Because there is partial membership in case of fuzzy sets. Okay. So we will do the fuzzy set operations first, and then you will have an idea of what the partial membership means. पार्शियल मेंबरशिप का क्या मतलब है? मैंने आपको फजी सेट्स कैसे लिखते हैं, हाउ डू वी रिप्रेजेंट फजी सेट्स, ये मैंने आपको बताया था. तो लेट अस डू दी ऑपरेशंस फर्स्ट. इससे पहले मैं आपको कार्डिनैलिटी के बारे में, डू यू नो व्हाट इज द कार्डिनैलिटी ऑफ एनी सेट? किसी भी सेट की कार्डिनैलिटी क्या होती है? हेलो हेलो. Yes, ma'am. What is the cardinality of any given set? कार्डिनैलिटी मैम होती है कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं बेसिकली. यस यस यस, ठीक है. तो नॉर्मल सेट्स जो हैं उसकी कार्डिनैलिटी हमें पता है. एक मिनट में एक बार व्हाइट बोर्ड शेयर कर लूं. फजी सेट में मैम कार्डिनैलिटी तो पॉसिबल हो नहीं सकती बिकॉज़ दे आर नहीं होती है. सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्डिनैलिटी इन फजी सेट्स. वी विल टॉक अबाउट दैट. थोड़ा सा बस एक बार क्रिस्प सेट्स जो हैं, क्रिस्प सेट्स में suppose A is any crisp set and this is suppose 2, 4, 6. ठीक है. तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी? कार्डिनैलिटी ऑफ A, so it will be 3. Okay, because it contains 3 elements, so the cardinality is 3. And you know what is a power set? Power set क्या होता है? It is a set of all subsets.
सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, पावर सेट। तो ए का पावर सेट क्या होगा? ए का पावर सेट क्या होगा? पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? सो 5 हमें पता है, 5 a 2 2 4 4 6 individually, then 2 4 4 6 2 6. yes, then 2 4, then 4 6, then 2 and 6, and then 2 4 6। ठीक है, और बस, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। No ma'am. So what is the cardinality of this power set? This is 1 2 3 4 5 6 7 8। So the cardinality of this power set, कार्डिनलिटी तो मैम वैसे होती है ना कि जितने एलिमेंट्स हैं उतने का मतलब 2 की पावर कर देते हैं हम। yes yes, 2 की पावर जो हमारी cardinality है, this n a, so this is 2 की पावर 3, so this is 8। so you are familiar, ठीक? so you are familiar with this concept। अब हम फजी ऑपरेशंस करेंगे। वी विल डू दी फजी ऑपरेशंस फर्स्ट, ठीक है? मेंबरशिप फंक्शन के बारे में हम बाद में करेंगे। फर्स्ट वी विल डू दी फजी ऑपरेशंस, ठीक? नाउ लेट अस ना कंसीडर 2 फजी सेट्स। ना एक एग्जांपल ले लेते हैं, वो फिर हमारे लिए इजी होगा। Let me take 2 fuzzy sets। So this is one set, ठीक है? आपने जो हमारे क्रिस्प सेट्स हैं उसमें हम 3 ऑपरेशंस करते हैं। यूनियन, intersection, very commonly used operations are, and complement। ठीक है, यही 3 ऑपरेशंस हम करते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ फजी सेट्स, so A union B, this is maximum of the membership function then A intersection B, this is given by minimum of this, and complement A का complement अगर मुझे निकालना है, ठीक है? तो ये this is 1 minus, okay, so this is the formula। ठीक है, मैं आपको करके दिखाऊंगी एक, then it will be more clear। now if I want to find out the union, if I want to find out A union B, ठीक है? मैं A union B निकाल रही हूँ। now I will take every x, so for 2 1 और 0.5 में से मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है? It is 1। for 4 0.3 और 0.4 में से बड़ा कौन सा है? 0.4। 0.4। for 6 it's 0.5, and for 8 it is 1। समझ आया मैं क्या कर रही हूँ? आपको समझ आया? so I have नहीं to मैम, take, एक बार वापस से एक्सप्लेन कर दीजिए। I have to take maximum of x, एक एलिमेंट है, उसकी इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है, ठीक है? x is one element,
सेट ए और सेट बी में ये जो एक एक्स एलिमेंट है, इसकी जो मेंबरशिप है, दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है मैक्सिमम ऑफ, तो इसका मतलब कि क्या मैं निकाल रही हूँ मैक्सिमम ऑफ, सबसे पहले मैं निकालूंगी 2 की जो मेंबरशिप है ए और बी में, उसका मैक्सिमम। तो मतलब मुझे निकालना है मैक्सिमम ऑफ 1 एंड 0.5, so this is equal to 1. Then I will find out maximum of second element जो है उसकी A और B में से मेंबरशिप किसकी ज्यादा है, so it is 0.3 और 0.4, ठीक है, इन दोनों में से बड़ा कौन है मैक्सिमम, so it is 0.4, so it is 1. Similarly for 6, 0.5 और 0.1 में से बड़ा क्या है 0.5. For 8, 0.2 और 1 में से बड़ा क्या है 1. आया समझ में? सूरज, सूरज, यस मैम, हैव यू गॉट दिस? समझ आ गई? यस मैम. बाकी और कोई, सबको समझ आ गई ये चीज? सो आई एम टेकिंग द मैक्सिमम वैल्यू, बड़ी वैल्यू, फॉर यूनियन ऑफ ए एंड बी. ठीक है, नाउ इफ आई हैव टू टेक द इंटरसेक्शन, अगर मुझे इंटरसेक्शन लेना हो तब हम क्या करेंगे? What will we do if I want to take intersection of A and B? मिनिमम वैल्यूज लेंगे. अब हम मिनिमम वैल्यूज लेंगे. सो A इंटरसेक्शन B क्या होगा? नाउ वी हैव टू टेक मिनिमा ऑफ A एंड B. तो 2 का जो इंटरसेक्शन हम लेंगे, तो विच इज द मिनिमम वैल्यू? इट इज 0.5. For 4 it is 0.3. For 6 it is 0.1, and for 8 it is 0.2. So this is how we find out the intersection. We take the minimum value for all elements x. For all elements x. Okay, intersection. Intersection clear है जी? Okay. Now I will find out the complement of A. ठीक है, A का कॉम्प्लीमेंट निकालना है. तो A का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? 1 माइनस म्यू A x. So for 2, 1 minus 1 is 0. So this is 0. For 4, 1 minus 0.3. So this is 0.7. Then 1 minus 0.5 is 0.5 by 6 and 0.8 by 8. This is complement of A. Similarly, you can find out complement of B. बताएंगे, कौन बताएगा? यश, आप बताओगे B का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यश पाठक, आर यू देयर इन क्लास? चंदन, मयंक, यस मैम. आप बताओगे चंदन? B का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस ये
तो यहाँ क्या आएगा? मयंक, मयंक आप बताओगे? मैम 2 पे मैम 0.5 आएगा, फिर 0.6 और फिर 0.9। मैम पहले 0.5 और 1 में से माइनस होता रहेगा ना ये इंटरसेक्शन हाँ, वाला। 1 minus 0.5 is 0.5, 1 minus 0.4 is 0.6, 1 minus 0.1 is 0.9 and 1 minus 1 is 0. ठीक Even है if मैम, the समझ गए। membership is 0, ठीक है, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती ए, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं कि अच्छा है तो 0 ही हो गया, दिस इज रॉन्ग, ऐसे नहीं करना। इवन इफ द मेंबरशिप इज 0 आई हैव टू राइट द एलिमेंट, ऐसा लिखेंगे हम। तो किसी एक आइटम की मेंबरशिप 0 भी हो सकती है, ठीक है, इट इज पॉसिबल इन फजी लॉजिक। ये चीज आपको क्लियर आ गई? हाउ डू वी फाइंड आउट द यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट? क्लियर है जी? यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट। आगे बढ़े। यस मैम। ठीक है, एक है डिफरेंस, देयर इज वन मोर ऑपरेशन, डिफरेंस। अगर मुझे डिफरेंस निकालना है, ठीक है, a माइनस b निकालना है, so this could be we can find out this by doing this, difference of a and b, ये मैं से निकाल सकती हूँ। आप ये लिख लें फॉर्मूले चारों। नाउ आई विल गिव यू वन प्रॉब्लम, ठीक है, अब आप मुझे करके दिखाएंगे। नाउ कंसीडर, नाउ आई एम गिविंग यू वन प्रॉब्लम, यू विल डू दिस। मैम जैसा आपने ये बताया, ये मैम लिख लें या फिर आप जो भी आपने बताया था फिजिक्स ऑपरेशन, ये लिख लें या फिर आप उसके नोट्स दोगे? नहीं, मैं आपको अभी प्रॉब्लम दे रही हूँ ना, ये करने के लिए आप मुझे आंसर बताओगे। बता सकते हैं? यस मैम। So this is one set B1 और ये B2 है। Now you have to find out B1 union B2, B1 intersection B2, complement of B1, complement of B2, and this difference। ठीक है, अगर difference, so एक तो ये हो गया difference, another difference is if I want to find out the difference between B and A, ठीक है, so this is B intersection A complement, ठीक है, ये आप करके कितनी देर में कर लेंगे? सो आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में हो जाएगा, तो आप ये कर लें। अभी फिर मैं आपसे ये पूछूंगी, ठीक
अगर असाइनमेंट आप लोग सबमिट नहीं करते हो, आई हैव टू सबमिट द मार्क्स टुडे फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। आई विल सबमिट द मार्क्स टुडे बाय 1 o'clock। ठीक है, आज मैं असाइनमेंट नंबर 2 भी आपकी क्लासरूम पे डाल दूंगी। ठीक है, इसी हफ्ते में आपको करके देनी है जी। अगर आप नहीं करोगे तो ये आपके लिए ही प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब मार्क्स चेंज नहीं हो पाएंगे, because I will be sharing the mark sheet after every assignment and MCQ, so I cannot make changes। तो अगर आप continuous परफॉर्म नहीं करोगे तो फिर आप एंड में आप फिर मार्क्स आपके खराब तो होंगे ही। डू इट क्विकली, 11:32 तक आप कर लें, then we will discuss this problem।
हाँ जी, हो गया, कर लिया आपने? राहुल से स्टार्ट करते हैं ना। राहुल चौधरी। यस मैम। हाँ जी, आप बताओगे क्या होगा यूनियन V1 यूनियन V2? यस मैम। मैम पहले 1/1.0 प्लस पहले में क्या आएगा? 1। यस, ओके, 1 1/1. और मैम दूसरे में आएगा 0.75, तीसरे में आएगा 0.3 और मैम इसमें आएगा 0.15 और 0.30। ठीक है, सो इट इज इजी, V1 यूनियन V2. ठीक है, अब इंटरसेक्शन में 1 और 0। क्या आएगा? 1 मैम 0 0 0.3.0। नहीं, इंटरसेक्शन में मिनिमम लेते हैं ना हम, तो 0.6 नहीं आएगा। 0.75 और 0.6 का मिनिमम। और मैम कॉमन भी तो आता है, कॉमन आता है इंटरसेक्शन में तो कॉमन आता है। नहीं, कॉमन नहीं, मिनिमम आएगा। हाँ मिनिमम और उसमें मैक्सिमम आएगा यूनियन। हाँ, तो इसमें मिनिमम, दोनों में मिनिमम तो 0.6 है ना। क्रिस्प सेट्स में हम यूनियन और इंटरसेक्शन अलग तरह से निकालते हैं। ठीक है, यहाँ ऐसे नहीं निकलेगा, वही तो मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, यहाँ मिनिमम आएगा, सो दिस विल बी 0.2 and this will be 0.1 और 0 ये। So the operations क्रिस्प सेट्स में जैसे हम यूनियन इंटरसेक्शन निकालते हैं, ऐसा हम फजी सेट्स में नहीं करते। मैंने आपको अभी ये फॉर्मूले आपने लिखे नहीं शायद, 3। ठीक है, दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो मिनिमा लेंगे, मिनिमा, तो मिनिमम ऑफ बोथ, दोनों का मिनिमम। ठीक, अब कॉम्प्लीमेंट कौन बताएगा? सौरभ मलिक। मलिक है यहाँ, बिल्कुल है मलिक। सौरभ मलिक जी, V1 का कॉम्प्लीमेंट आप बताओगे? सौरभ। मलिक इज नॉट हियर। यस मैम। हाँ जी, इसका मिनिमम आप बताओगे, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? किसका मैम? V1 का कॉम्प्लीमेंट। हाउ डू वी फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट? ये फॉर्मूला देखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी फजी सेट A is given by 1 minus membership of X in A. So the complement of B1 is, for every X, I will subtract the membership value by from 1. 1 से 0/1. 0, yes. 1. Then 1 minus 0.25. 0.5. Minus करेंगे। 0.5. Yes, plus, then this is 2.0. So 1 minus 0.3 is 0.7. 1 minus 0.15 is 0.85. and this is 0. 1 minus 0 is 1. 1/1/3.0. 1/3.0. Similarly, you can find out the complement for B2.
B2 का कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं B2 का कॉम्प्लीमेंट। यस मैम। निकालो B2 का कॉम्प्लीमेंट, बताओ क्या आएगा। मैम 0/1.0 एक मिनट, और 0.4/1.5। हम 0.4 फिर 0.8 फिर B2 0.9 का फिर 0.9 फिर 1। एक मिनट जी, एक मिनट। तो ये हो गया 0 1 - 1, सो दिस इज 0.4 0.8 0.8 0.9 0.9 और 1 और ये हो गया 1/3.0। 1। ओके ओके, ठीक है। डिफरेंस निकालो, डिफरेंस निकाल के बताओ। डिफरेंस निकालो जी। डिफरेंस बताएगा मैम। इसके लिए मुझे क्या करना है, पहले मुझे B1 - B2 करना है ना। ये फजी सेट है, ये मैं कहीं भूल जाऊं तो आप लगा लें इसको, ठीक है। मैं भूल जाती हूँ तो आप लगा जरूर लें, ठीक है। तो अब मुझे B1 - B2 निकालना है, डिफरेंस निकालना है। so what I have to do is I will find out complement of B2, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मुझे ये निकालना है B1 इंटरसेक्शन B2 का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। B2 का कॉम्प्लीमेंट मेरे पास है। B1 intersection complement of B2, ठीक है। तो B1 ये रहा, B2 का कॉम्प्लीमेंट ये रहा। दोनों में से मिनिमम है 0, 0.4, this is 0.3, 0.15 and this is 0। मैं असाइनमेंट आपको जो भेजूंगी उसमें एक क्वेश्चन इस तरह का, एक दो क्वेश्चन इस तरह का भी मैं डाल दूंगी, ठीक है। प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। इट इज वेरी इजी, ठीक है, वेरी इजी, कोई मुश्किल नहीं है ये। इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, वेरी इजी, यू कैन डू इट, ठीक है। मैं आपको भेज दूंगी, आप कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अब B2 - B1 भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। फाइंड आउट दिस ऑल्सो, B2 B1, तो इसमें क्या निकालना है हमें, व्हाट वी विल फाइंड इन दिस B2 इंटरसेक्शन B1 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मतलब B1 का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ये निकाला हुआ मैंने। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, ये जिन पे मैंने हैश लगाया, इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट मुझे निकालना है, सॉरी इंटरसेक्शन। I have to find out the intersection of these two to find out this. फजी ऑपरेशंस में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। यूनिवर्स, ठीक है, इसका यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स क्या है?
इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जो यूनिवर्स है वो क्या है? दिस इज द यूनिवर्स। दिस इज द यूनिवर्स। ठीक है, अब आप करके देखें। ठीक है, इफ आई टेक कॉम्प्लीमेंट, इफ आई टेक एनी फजी सेट V1 एंड देन आई टेक इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, उसका मैं कॉम्प्लीमेंट भी लूं, तो एनी एलिमेंट इन दिस यूनिवर्स is present in that fuzzy set as well as its complement, but with a different value of membership function, with a different membership. ठीक है, ऐसा क्रिस्प सेट्स में नहीं होता। ठीक है, क्रिस्प सेट्स में क्या होता है, एक एलिमेंट या तो एक क्रिस्प सेट की एलिमेंट होगी या उसके कॉम्प्लीमेंट में होगी। जस्ट गो थ्रू दिस थिंग एंड नाउ again same question. Now you will tell me tomorrow why the law of excluded middle and law of contradiction does not hold in fuzzy sets. आज मैंने आपको ऑपरेशंस करा दिए, आप ऑपरेशन से प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, यू टेक बोथ दी लॉज। जैसे फजी क्रिस्प सेट्स में क्या है, A यूनियन A इज इक्वल टू यूनिवर्स, इट इज इक्वल टू द यूनिवर्स। ठीक है, बट ऐसा फजी सेट्स में नहीं होता। ठीक है, आप ये करके देख सकते हैं। ठीक है, यू जस्ट डू दिस। और आप कल, फिर मैंने लास्ट क्लास में भी पूछा था, आपने शायद लिखा नहीं, आज फिर मैं यही पूछ रही हूँ, व्हाई दी टू लॉज दे आर नॉट ट्रू इन केस ऑफ फजी सेट्स। ठीक है, यू विल टेल मी दिस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, सो वी हैव दिस। ठीक है, दिस क्लास विल एंड एनी टाइम। एक बार मैं अटेंडेंस देख लूँ। अटेंडेंस लिए अक्षय, चंदन, मयंक, अक्षय, चंदन, मयंक, राहुल, शुभम, सौरभ, राहुल, शुभम, सौरभ, सूरज एंड यश, रुषाद और अनुपम नहीं।